Hello students, welcome to the mathematics of class 2, chapter 4, counting in tens. This is the part 1 of this chapter. Students, this chapter is not going to come in any exam, okay, and you will not get PDF file related to this chapter. This chapter you are going to learn because of your self study. आपकी पढ़ाई के लिए मैं आपको ये समझा रही हूँ because some concepts are related to this next year syllabus also. Okay, so now let's start it. Now you open the textbook page number 24. So let's start the story Chickens and the Clever Fox. Here some are the chickens and he is a fox. Okay, the hen baby is called the chickens. So Tiklu farmer has many chickens in her farm. One day a clever fox saw these naughty chickens playing around. See, the girl name is a Tiklu. She is a farmer. Her farm has many chickens. Okay, उनके फार्म में बहुत सारी चिकन्स थी. So एक दिन क्लेवर फॉक्स ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चिकन्स है. So from that day she started stealing and eating chickens every day. तो फॉक्स ने क्या किया, उस दिन से उसने चिकन को चुरा लिया और खाना स्टार्ट कर दिया. So this farmer said, "Hey, do you eat my chickens?" So fox said, "No, dear, I am your friend. How can I eat your chickens? मैं या तो आपका फ्रेंड हूँ, मैं कैसे आपकी चिकन खा सकता हूँ?" What this said, fox said to farmer. Tiklu came to know about it. She asked a fox. Okay, टिकलू को ये पता था, इसलिए उसने फॉक्स को ये सब पूछा. Now टिकलू thought of counting her chickens every morning and evening. टिकलू ने क्या किया कि चलो मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग को चिकन्स काउंट करूँगी. But the chickens kept moving around here and there. She said, "I will put 10 chickens in one basket and count them. And if I find any of them missing, I will give the fox a tight slap." ओके, अगर इसमें से एक भी चला गया तो मैं फॉक्स को एक बड़ा सा स्लैप दूँगी. ठीक है. नाउ सो व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ मेकिंग अ ग्रुप. सो इन वन बास्केट शी पुट अ 10 chickens. Okay, so it make your counting easily. Students, this is the heading of our chapter, counting in tens. So when we put something in a 10 group, so we can count very easy way. Okay, so if I am having the 30 chocolates and if I am making the 10 groups of 3, so it becomes 30. So I can count very easily and quickly also. Okay, so same way she did. She kept the 10 chickens in one basket and then she started counting. Okay, let's see the next page. Now in the morning she counted her chickens. So morning में क्या किया, उसने chickens को count करना start कर दिया. How many basket of 10 chickens are there? उसने पूछा कि यहाँ पे जो बास्केट है 10 चिकन्स के कितने हैं. तो आप देख सकते हो उसने 10 चिकन्स काउंट करके रखना स्टार्ट कर दिया. तो यहाँ पे कितनी चिकन्स है, 10. ओके, तो देखो हमें पता है कि हर एक बास्केट में 10 है, तो हम फास्ट काउंटिंग कर सकते हैं. तो कितनी हो जाएगी, 10 + 10 20 30 40 एंड 50. सो 50 चिकन्स हो जाएगी. सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी बास्केट ऑफ 10 चिकन्स. 10 चिकन्स के बास्केट कितने हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5. तो व्हाट आंसर हैज़ टू राइट हियर स्टूडेंट्स, 5 baskets, right? Let's see the next questions. How many chickens are there in all? अब यहाँ पे जितनी भी चिकन्स है वो कितनी है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हमने काउंट कर लिया 10 20 30 40 एंड 50. देखो हमारा काउंटिंग ईजी हो गया क्योंकि हमें पता है कि वन बास्केट हैज़ 10 चिकन्स. ओके, सो 50 प्लस 4 आर लूज 1 2 3 एंड 4. सो 4, सो इट बिकम्स हाउ मेनी टोटल चिकन्स, 54 चिकन्स. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट ones and tens concept here. See students, how these numbers become 5 4 54. See, 4 are loose 1. Okay, when the single digit numbers are there 0 to 9, that has to write on a ones place. Okay, and now which the 2 digit number comes, that has to write on tens place. यानी 5 is on tens place. so 5 tens का मतलब क्या होता है, 50. 110 मीन्स 10 नंबर. ओके, यानी आपको यहाँ पे मैं समझा रही हूँ 110. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 110? 110 मीन्स हाउ मेनी नंबर्स, 10. देखो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, सी यहाँ पर 10 चिकन है.
So that means 10 number are, so it becomes 110. Okay, 20 chicken means 2 tens, 30 chicken 3 tens, 40 chicken 4 tens, and 50 chickens means 5 tens. And if 5 tens becomes a 50. Okay, and 4 are lose one, 4 lose at a 50 plus 4 becomes 54. Clear students? समझ में आ रहा है? What is the meaning of 10? 10 means 10 group will make a 110. 20 object will make a 2 tens. Clear? 110 का मतलब होता है there are 10 numbers in particular group. क्लियर स्टूडेंट्स? 5 टेंस का मतलब होता है 50, एंड जो लूज होते हैं 0 से 9 तक 1 डिजिट नंबर दैट हैज टू राइट ऑन वंस प्लेस. क्लियर स्टूडेंट्स? सो यू मस्ट बी क्लियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वंस एंड टेंस. Same exercise on the same page. In the evening, she counted the chickens again. मॉर्निंग में तो उसने काउंट कर दिया था. अगेन शी काउंटेड इन इवनिंग. देयर आर डैश बास्केट ऑफ 10 चिकन्स. अब 10 चिकन्स के यहाँ पे कितने बास्केट्स है आप देख सकते हो. 1 2 3 and 4 baskets. Okay, so what has to write here students? 4. Now next, there are dash plus 3 is equal to chickens in all. यानी टोटल कितनी चिकन्स है? 4 basket means how many chickens students? 40. So हमें यहाँ पे क्या लिखना है? 40. 40 plus 3 will become 43. How 43 will come? See, 1 basket 10 chicken, 20, 30 and 40 chicken. And how many lose one? 1, 2 and 3. So plus 3, 40 plus 3, 43 chickens in all. So 54 minus dash is equal to chickens have been eaten by 4. यानी हमने यहाँ पे पहले देखा तो पहले कितनी चिकन थी स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने काउंट किया था ना, यहाँ पे टोटल कितनी चिकन थी? 54. ओके, बट नाउ जस्ट नाउ व्हेन शी काउंटेड टोटल 43 चिकन्स आर देयर. सो कितनी उसमें से चिकन्स फॉक्स ने खा ली, यानी 54 माइनस 43 करेंगे तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 54 माइनस 43 तो 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. ओके, सो फॉर 11 चिकन्स हैव बीन ईटन. तो कितनी चिकन्स खा ली स्टूडेंट्स? 11. ओके, 11 चिकन्स ईटन बाय द फॉक्स. क्लियर स्टूडेंट्स? पहले 54 चिकन थी, उसमें से इवनिंग को काउंट किया तो 43 चिकन रही. दैट मीन्स 11 चिकन फॉक्स ने खा ली. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नाउ हाउ मेनी आर दस. अब यहाँ पे काउंट करना है ये कितने हैं. भानु कलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम द जंगल, ही सेल्स देम इन द मार्केट. ना उसने जंगल में से स्टिक कलेक्ट करी है, ना वो मार्केट में सेल करेगा. ही यूजेस 10 स्टिक टू मेक 1 बंडल. अगेन वो 10 स्टिक को एक करके एक बंडल बना रहा है. देखो है ना, मैंने बोला था ना 10 स्टिक मीन्स हाउ मेनी टेंस? 110. नाउ 3 बंडल्स हैव डैश स्टिक. अगर एक बंडल में 10 स्टिक है तो 3 बंडल्स में कितनी होगी स्टूडेंट्स? 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30. यानी 3 बंडल में कितनी स्टिक्स होगी? 30. समझ में आया स्टूडेंट्स? तो व्हाट इज टू राइट हियर? 30. नाउ नेक्स्ट वन. नाउ हाउ मेनी स्टिक्स इन ऑल आर दिस. यानी यहाँ पे जो है वो कितने स्टिक्स है? तो देखो 1 बंडल में 10, सेकेंड बंडल में 10. हमें 1 2 3 करके काउंट नहीं करना पड़ेगा. सो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30. अब लूज वन कितनी है, यानी अलग से कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. अगर यहाँ पे 10 होती तो वापस वो एक बंडल बन जाता, पर यहाँ पे 9 है. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स? 39. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नाउ लास्ट नेक्स्ट वन. 4 बंडल्स वुड हैव डैश स्टिक. अगर 4 बंडल्स होते तो कितने स्टिक होती? 3 बंडल मीन्स 30, तो 4 मीन्स 40. 1 बंडल हैज 10 स्टिक्स, 2 बंडल 20, 3 बंडल 30, 4 bundles 40. So what has to write here students? 40 40. Clear? Easy है. यानी 110 means 10 numbers in that bundle. 2 tens means 20 number. वो याद रखना है आपको. 7 tens to how many numbers are there? 70. 9 tens means how many numbers? 90. 10 tens means 100 numbers. Okay? यानी 10 का मतलब समझ में आया? 10 numbers in one bundle. Okay, now let's see the next one. So open the next page students. There is a wedding in Malti's house. She is making a flower garlands.
गार्लेंड्स में जो फूलों की माला होती है ना वो बना रही है। मालती के हाउस में वेडिंग है। शी यूजेस 10 फ्लावर्स टू मेक अ वन गार्लैंड, यानी ये जो फूल की गार्लैंड बनाना है, माला बनानी है, तो उसमें वो 10 फ्लावर यूज़ कर रही है फॉर मेकिंग वन गार्लैंड। सो हमें यहाँ पे काउंट करना है कि यहाँ पे कितने फ्लावर्स है। सो कितने हैं 10। अब इजीली 1 2 3 करके काउंट नहीं करना पड़ेगा, वी कैन काउंट डायरेक्टली 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50, राइट। अब लूज कितने हैं 8 फ्लावर्स यहाँ पे दिए देखो, तो 50 + 8 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 58। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स। How many garlands are here and how many flowers are here? 10, 20, 30, 40, 50, 60। देखो आप इजीली काउंटिंग कर सकते हो ना, आपको 1 by 1 काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा। 61, 62, 63, 64, 65, 67, यानी टोटल कितने फ्लावर्स है स्टूडेंट्स यहाँ पे 67। समझ में आ गया। सो अगर आप 10 का ग्रुप बनाओगे तो यू कैन डू द काउंटिंग वेरी इजीली एंड ईजी वे। Okay, now let's see the exercise on the same page. Students, this is your homework, so that has to do by own. क्या करना है होमवर्क में आपको? How many garlands of 10 flowers each can you make using 21 flowers? Draw them in the space given below. तो यहाँ पे आपको क्या करना है 10 फ्लावर्स के गार्लैंड बनाने हैं, ठीक है, यूजिंग 21 फ्लावर्स, यानी 21 फ्लावर्स आपके पास है, उसमें से 10 फ्लावर्स का 1 गार्लैंड बनाना है। तो कितने गार्लैंड बना सकते हो स्टूडेंट्स? थिंक एंड टेल मी, कितने गार्लैंड बनाओगे? सो आप क्या करोगे, ऐसे करके राउंड बनाओगे, उसमें 10 फ्लावर्स ड्रॉ करोगे, तो 1 गार्लैंड हो गया। नाउ सेकेंड गार्लैंड बनाओगे, उसमें 10 फ्लावर, सो 10 + 10 20। ओके, और 21 फ्लावर से बनाना है तो यू हैव टू ड्रॉ 1 लूज। ओके, सो 21 फ्लावर से आप 2 गार्लैंड्स बना सकोगे एंड 1 इज लूज 1। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? सो आई होप you understand this chapter. Still this chapter is not going to come in exam, but you have to do the preparations for this chapter also. Okay, thank you students.